Hello, everyone. So can you please on your video so that I can see you and we have a good interaction? Rajeshwari Reddy and Sushila ji and Galaxy से किसने join किया है हमें? Can you rename yourself? It will be great अगर मैं आप लोगों को देख पाऊँ so that I can express more. Correct? So please, can you on your videos? Hello, how are you, ma'am? You're on mute. Hi. Yes, hi. Yeah, hi. So how are you? I'm good. I'm fine. Thank you. How you came to know about this this program of spiritual parenting? Actually, even I am a parent coach from the Deep Parenting group. So, Oh, great, great. yeah, but I'm not practicing. So I thought I'd hear you out and, like how to go about and everything. Okay, okay, great, great. So welcome to this group, and welcome to spiritual parenting, which is today we are taking this topic. And Rajeshwari, can you come on the screen? And Galaxy से भी किसने join किया है? Can you please on your video and rename yourself so that ना हम अच्छे से connect तभी हो पाएंगे and मैं आप लोगों को अच्छे से बात अपनी express कर पाऊंगी कि आज मैं इस meeting में आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ. What is spiritual parenting actually? Yes, ma'am. I am also from Deep Parenting Coach. Oh wow, great, great, Yeah. nice. So tell me about some. कुछ बताइए अपने बारे में. Yeah, I just want to. No, I'm just a graduate, and I have I'm curious to know more about this. I want to earn more information on this parenting and about the children's. So I just like to attend this kind of sessions to gain my information, my knowledge. Yeah, great, great. Yes. Nice. And Galaxy पे कौन है? Can I see? Can I see you? Galaxy पे कौन है? Please rename yourself so that हम और अच्छे से interaction कर पाएंगे हमारे इस topic पर. चलो हम देर नहीं करते हैं. We'll start this session because ये first session है मेरा जिसके अंदर मैं only 40 minute का session लेने वाली हूँ. And then we'll meet next day on Monday, same time 9. Okay. Then I'll tell you more about this topic. Okay. So आज का जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग. आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ द चाइल्ड टू एजुकेट करने की राइट एज क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द राइट एज? Educate as in the educate मतलब or the education like the curriculum. या करिकुलम भी आप मान लीजिए और एनीथिंग जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो आप कौन सी राइट एज मानते हैं? Actually, तो right from when he starts understanding, he or she, the child, when starts understanding us, they do understand the language. So Okay. that time, according to me. Okay. And Rajeshwari, you can also share your thought. Rajeshwari, can you hear? Yes, ma'am. What is actually according to me, yeah, if it is if I tell about the academic is different, but learning it start from means the child gets start learning many things, not studying of the academic thing, what is the schooling thing, but the child learns different things, activities or whatever. So that can be they can learn at a very early stage. So if I say about the academic or the schooling, it can be by 3 years. Okay. Okay, Can great. be by 3 years. Yes. So that means हम ये कहें कि जब बच्चा 3 years का हो जाता है या 2.5 years का हो जाता है, that is the right age for learning or educating a child. Correct?
बट आप इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बट लेकिन हम इस बात के लिए अवेयर नहीं होते हैं कि व्हाट इज द राइट एज टू एजुकेट अ चाइल्ड. इट इज प्री कंसेप्शन. जब बच्चा हम कंसीव करते हैं, देन ओनली वी कैन स्टार्ट द एजुकेशन, गिविंग देम पावर्स टू लर्न द राइट Right, एज. the garden start. हाँ, दैट इज Okay, द that's great. फर्स्ट स्टार्ट. वो तब हाँ. फर्स्ट स्टार्ट होता है एजुकेशन करने का. करेक्ट. दैट इज 1100 डेज. कितना टाइम पीरियड होता है उस पीरियड में? प्री कंसेप्शन से लेकर टिल द चाइल्ड इज 2.5 years. तब तक हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं. हम उसके अंदर इतनी पावर्स के साथ में होता है, वो इतनी सारी एजुकेशन दे सकते हैं जितना हम चाहें. We can design the character of the child. We can design everything, the values. करेक्ट. जैसे कि आपने सुना भी होगा गर्भ संस्कार के बारे में, अभिमन्यु इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, बहुत से एंशिएंट स्टोरीज में भी हमने पढ़ा है. बट नाउ वी आर इन दिस एज, मॉडर्न वर्ल्ड में हम आ गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द राइट एज टू एजुकेट अ चाइल्ड. हमको यही लगता है कि जब बच्चा आ जाएगा तभी हम उसको सब चीजें सिखाएंगे, बट उससे पहले ही वो ऑलरेडी आपके आपका जो बिहेवियर है, आपका जो टेम्परामेंट है, उसी से ही सारी की सारी चीजें वो सीख लेता है. करेक्ट. Right. अगर आप Yes. पीछे जाएंगे, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? Well, my children are quite big. My daughter is married, but she's Okay. got a baby of 6 months. So I was Okay. much interested if you could guide and direct. I had asked her also to join, Okay. but the baby is not slept, so she couldn't. Maybe she'll join in a while. Okay. Okay. Great. So Yeah. अभी का जो टाइम पीरियड होता है वो इस तरीके से होता है पेरेंट्स का एंड कपल्स का. दे डोंट नो हमें करना क्या है एग्जैक्टली. और हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड जो आ गया है, अब हम इतने टेक्निकल हो गए हैं, हम इतना सारी चीजों को इतने मॉडर्नाइजेशन तरीके से करते हैं, एंड वी आर सो मच इतनी सारी चीजों के साथ हम फंस चुके हैं कि वी डोंट नो कि हमें एजुकेट क्या करना है बच्चे को, कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं बच्चे को, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प हिम इन हिज लाइफ जर्नी. कैसे उसकी लाइफ जर्नी में ये सब चीजें हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज वी आर डिजाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड इन दिस पीरियड ओनली. अगर आप इसकी बात सोचेंगे कि आफ्टर 2.5 years किसी स्कूल में डाल देंगे हम या किसी अच्छे एरिया में डाल देंगे, देन ही कैन लर्न ऑल दोज थिंग्स. नो, ये टाइम पीरियड केवल यही है. दिस इज द राइट टाइम जब हम बच्चे को रेडी कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, उसका मॉरल डिजाइन कर सकते हैं. करेक्ट. इसके अलावा हमारे पास टाइम होता है क्योंकि देयर इज ऑलवेज हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट लेकिन इट विल टेक टाइम. सब चीजों को टाइम लगेगा आपको चेंज करने के लिए. करेक्ट. बट सम ऑफ द प्रैक्टिसेस आर हियर जिसके साथ हम अपने बच्चों के साथ, अपने साथ हम कुछ कुछ चीजें ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे वी कैन चेंज द थिंग. दीदी मैं भी खाऊं. Hi. Mic is on. Hello. Yeah. Thank you. Okay. So यही टाइम पीरियड है जिसमें हम बच्चों को हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब इस फेज में मदर्स होती हैं तो मदर्स बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करती हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं. तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि मदर्स के साथ जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो बच्चा भी सेम इसी तरीके से होता है. कई बार अपन देखते हैं बच्चे, दे आर नॉट वेरी फूडी, खाना नहीं खाते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, खाना कुछ पसंद नहीं आता है, बिकॉज सेम टेम्परामेंट इज. जब वो प्रेगनेंसी में थी तब उनका इसी तरीके से टेम्परामेंट था, इसी तरीके से उनको वॉमिटिंग होती थी. दे आर नॉट कनेक्टिंग टू द चाइल्ड. करेक्ट. वो अपने बेबी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. तो व्हाट इज द राइट टाइम टू कनेक्ट द बेबी? बेबी के साथ कनेक्ट करने का क्या राइट टाइम है? द प्री कंसेप्शन एंड द होल 9 months एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो 2.5 years तक हम बेबी के साथ कनेक्शन विद आवर सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम बिठा सकते हैं.
करेक्ट? हम सभी को पता है वी हैव 2 ब्रेन्स, 2 ब्रेन्स है हमारे पास, हमको सबको पता है, करेक्ट? वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड हमारा क्या करता है? कैन यू टेल मी? कॉन्शियस माइंड हमारा क्या कर रहा है? कॉन्शियस माइंड इज, हम यहाँ बैठे Behaving हैं, as per the- सुन रहे हैं, हाँ, दिस इज अ कॉन्शियस माइंड. हमें पता है हमें क्या करना है. वी आर सिटिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग, करेक्ट? दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. Sorry, this is our conscious mind. And what is Conscious mind. subconscious mind? And what is subconscious mind? What is happening inside your body? जो भी functions आपकी body में हो रहे हैं, breathing, correct? Pumping of heart, every system in your body is through your subconscious mind. जैसा आप, you know, आपको उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती. It is happening automatically. So this is the way to connect with the child. इसी तरीके से हम बच्चे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. And we can give all our powers to the babies. And we can do with the elder ones also. हम यही प्रोसेस अगर अपनाते हैं तो हम अपने जो एल्डर बच्चे हैं उनको भी हम इसी तरीके से गाइड कर सकते हैं. So the question is this कि हम उसको गाइड कैसे करेंगे? First of all, what we have to do in this, कैसे कर सकते हैं हम इसको? So there is an exercise जिसको हम हमेशा बोलती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को करने के लिए कि यू शुड परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एवरी 15 डेज. अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, या बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको आपको ओवरकम करना है, जिसको आपको सॉल्व करना है, तो यू शुड डू दिस प्रैक्टिस इन एवरी 15 डेज. क्योंकि एवरी 15 डेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आपके अंदर जरूर आते हैं, करेक्ट? इसी तरीके से आप कैसे करना है इस एक्टिविटी को? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ बैठ के इस एक्टिविटी को करेंगे. हस्बैंड अपनी वाइफ की एक्टिविटीज लिखेगा एंड वाइफ अपने हस्बैंड की एक्टिविटी लिखेगी, बिकॉज आप दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, करेक्ट? इवन द पार्टनर कैन सी द गुड पॉइंट ऑफ योर्स, करेक्ट? हम अपने पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स भी देख के उसको बता सकते हैं कि यस दीज आर द गुड पॉइंट ऑफ योर्स. सो ये पॉइंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आ जाए, बट द नेगेटिव पार्ट वो हमें हटाने पड़े, करेक्ट? सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है. सो यू हैव टू परफॉर्म विद योर पार्टनर. आप लोगों को अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, करेक्ट? किस तरीके से लिखेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है. एक पन्ने पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं और एक पन्ने पे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, करेक्ट? एंड देन आपको क्या करना है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या मेरे पास कोई नया काम आता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत हसल फसल होने लग जाता है कि ओफो मेरे को ये भी करना है, अभी ये भी करना है, तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है. हाउ वी कैन मैनेज आवर लाइफ. और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो मेरे बच्चों में ट्रांसफर ना हो. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन आई हैव टू tear it, remove it. फाड़ के उसको आपको फेंक देना, करेक्ट? ये जो टेक्निक है ये डेफिनेटली वर्क करती है, बिकॉज जब आप कुछ सॉलिडिफाई करते हो, किसी चीज को आप लिखते हो, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. पहले तो आपके थॉट्स हैं वो जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं, करेक्ट? बट ये जो थॉट्स हैं अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हो देन राइट डाउन एंड रिमूव इट, टेयर इट ऑफ, करेक्ट? और जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से लिखो. यू कैन एड ऑन आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद फिर से और पॉजिटिव पॉइंट्स आप निकालो अपने अंदर एंड देन राइट इट ऑन. मेक अ गुड पोस्टर ऑफ इट, करेक्ट? क्रिएटिव होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर योर एज, कोई भी एज हो आपकी, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब आई कांट डू एनीथिंग फॉर माई किड्स, अब मैं कुछ और मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ. नाउ अब करेक्टर इज डिजाइन एंड एवरीथिंग इज सेट, नाउ आई कांट डू एनीथिंग, मैं अब बच्चों को नहीं बदल सकती. ऐसा नहीं होता. बट फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. हमें अपने आप को चेंज करना होता है पहले, बिकॉज जो बच्चे होते हैं हमने उनको सिखा दिया एट द एज ऑफ 2.5 years तक, वो उनका जो करेक्टर डिजाइन होता है वो इस पीरियड में हो जाता है. आफ्टर दैट ही विल और शी विल शो यू द मिरर कि आपने मुझे ये सिखाया है एंड नाउ
see who I am now, मैं क्या हूँ आज. करेक्ट. दोज एक्टिविटीज जो भी आप मतलब सरप्राइजिंगली भी बताएंगे उसको, he will show all the results to you. समझ रहे हैं आप लोग बात को कि किस तरीके से बच्चे अपनी सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं. बट हम क्या करते हैं, आफ्टर 2.5 years we don't listen to our kids. अब इतने टेक्निकल वर्ल्ड में बच्चे पैदा हुए हैं, दे नो ऑल हाउ टू किस तरीके से मोबाइल चलाना है, किस तरीके से जूम करना है, व्हाट इज वीडियो कॉलिंग, एवरीथिंग. बच्चा जो छोटा होता है वो भी सब कुछ चीजें जानता है कि हमें कैसे किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करना है. करेक्ट. बट लेकिन Yes. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको रोकते हैं. अब नाउ वी आर इनटू दिस पोजीशन कि बच्चा अब 2.5 साल का हो गया है, अब इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो. हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करने देते. ही इज न्यू टू द वर्ल्ड, ये इस वर्ल्ड में न्यू है. सो आप न्यू के लिए उसको देखने तो दो, सर्च तो करने दो. आफ्टर लॉकडाउन हमने बच्चों में क्या देखा है, एंड पेरेंट्स में स्पेशली क्या देखा है कि अब 2 साल हो गए, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, बहुत पीछे हो गए बच्चे. तो अब नाउ हाउ दे विल वर्क, कैसे कवर अप कर पाएंगे. करेक्ट. नाउ दे आर गिविंग ट्यूशंस, एक्स्ट्रा स्टडीज, ऐसे वैसे करके उनको मतलब बहुत ज्यादा बोझ में डाल रहे हैं हम कि नाउ यू कैन स्टडी दिस एंड दैट, ये ऑप्ट कर लो, वो ऑप्ट कर लो. सो नो, ये हमको करना ही नहीं चाहिए. व्हाट इज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज दैट, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं या भजन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है. यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप को पहले एनालाइज करो, एंड देन शो द ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ योर्स. अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बच्चे को दिखाने. यू हैव टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड. उनको क्या चाहिए, केवल टाइम चाहिए, आपका टाइम. व्हाट इज योर आर यू गिविंग स्पेशल टाइम टू देम. 2.5 years के बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद जब आता है, यू डोंट हैव टाइम टू लिसन. आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हमें बच्चा क्या करके आया है वो बताएगा, क्योंकि आपने जो उसको बताना था, आपने जो उसको करेक्टर डिजाइन करना था, वो सब कुछ हो चुका है. नाउ अब ही इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड टेलिंग टू यू, आपको आके बता रहा है वो कि देखो आई हैव सीन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, एंड आपके पास टाइम नहीं है. करेक्ट. सो आपको उसके लिए टाइम निकालना है. यू हैव टू एक्सप्लोर व्हाट पॉजिटिविटी ही हैज गेन्ड फ्रॉम यू. क्या पॉजिटिविटीज आपसे उसने गेन की है. हमने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही एक आया था, एक चाय वाले की दुकान में एक उसकी डॉटर थी, एंड शी IAS RS का एग्जाम उन्होंने पास किया, एंड सम ऑफ द गेट 90% मार्क्स, हायर पोस्ट पे आ गए, बट पेरेंट्स तो पढ़े लिखे भी नहीं थे. सो हाउ दे कम इन दिस पोजीशन, कैसे इस पोजीशन पे आ जाते हैं. हाउ दे सक्सीड इन लाइफ, वो कैसे हो जाता है. कैन यू आंसर, कैसे वो सक्सीड हो जाते हैं बच्चे. हाउ दे कैन सक्सीड इन लाइफ. बच्चों, पेरेंट्स को तो पढ़ना ही नहीं आता, बट हम तो बहुत ज्यादा टेक्निकल से भी, हम तो 2.5 साल से ही बच्चे के पीछे लग जाते हैं कि बच्चा पढ़ो 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 पढ़ो. हाउ दे कैन गेन, कैसे वो गेन कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ देयर उनकी जो विल है, विल पावर है, उनकी पॉजिटिविटी है. करेक्ट. उनके कैरेक्टर डिजाइनिंग जो उन्होंने करी है बच्चे की, दैट इज द पॉजिटिविटी बिहाइंड देम. उन सभी बच्चों के पीछे वो पॉजिटिविटी होती है. हम बहुत और दूर क्यों जाएं, हम अपने नरेंद्र मोदी पे जाते हैं. करेक्ट. हमारे पीएम, उनके पास भी यही पावर्स थी, द पॉजिटिव पावर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. करेक्ट. और हम एग्जाम्पल्स, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम जो भीड़ में से अलग जो दिखते हैं, अगर हम उनके बारे में सर्च करें थोड़ा सा भी, तो हमें पता लगेगा कि व्हाट द क्वालिटी ऑफ लाइफ द पेरेंट हैज गिवन टू द चाइल्ड. क्या करेक्टर उन्होंने बिल्डअप किया है, क्या थॉट प्रोसेस था उनका इस टाइम पीरियड में. करेक्ट. अगर हम अभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे योगा करें, बट हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो उठ ही नहीं रहे सुबह, हमारा टाइम टेबल ही ऐसा नहीं है, शेड्यूल ही ऐसा नहीं है, तो बच्चे हमें ही देखकर सारी चीजें करते हैं. सो वी हैव टू फर्स्ट इवेल्युएट आवरसेल्व्स कि हमारे में क्या पॉजिटिव चीजें हैं,
क्या नेगेटिव चीजें हैं, अगर कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो उनको हम रिमूव कर दें एंड पॉजिटिविटी को ही बच्चे के सामने रखें. देन ही कैन चैलेंज ऑल द थिंग्स इन लाइफ. जो भी उसके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, देन ही विल लुक बैक कि मेरे फादर मदर कैसे करते थे, इस सिचुएशन में मेरे फादर मदर ने क्या किया था. समटाइम्स हम भी ऐसे रियलाइज करते हैं. कभी ऐसा लगता है आप लोगों को? किसको देखते हो आप पलट के? किसको देखते हो आप अपने बैक एंड पे? किसको देखते हो? यू सी योर पेरेंट्स. हम सभी अपने पेरेंट्स को देखते हैं, करेक्ट. उन्होंने हमको क्या वैल्यूज दिए हैं, क्या गुड वैल्यूज दिए हैं, हम उन्हीं के ऊपर देख के सभी काम करते हैं, करेक्ट. Anything you want to ask or you want to add in this? You can just add in. Nidhi, do you want to say? Rajeshwari, do you want to say anything? Then you can also add in this, क्योंकि हम बात करेंगे साथ में, then only we can have a good conversation with this. Anything you want to say, Nidhi? Rajeshwari, Dr. Seema, hello. Sushila ji, can you add? Yeah, just like you have to, as you said rightly, that you have to just focus on building their character. Like they should be at first be what I have followed my life. Like वो मैं बता रही हूँ कि इसी चीज पे फोकस करो कि they should be good humans. Like एक अच्छे personality build करो, success तो अपने आप आ जाएगा. Not just technical. Like मेरा इंटरेस्ट भी आपको ज्वाइन करने का द स्पिरिचुअल आउटलुक व्हाट यू हैव नेम्ड कि एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा पर्सन बन जाए तो सक्सेस तो टेक्निकल तो अपने आप सीख जाते हैं बच्चे, बेटर देन अस. लाइक एज यू सेड, अनएजुकेटेड पेरेंट्स के भी बच्चे टेक्निकली और वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. नॉट नेसेसरी कि इफ यू आर अनएजुकेटेड योर चिल्ड्रन वुड स्टे अनएजुकेटेड. करेक्ट. सो एकेडमिक्स उनको स्कूल से और वो सब चीज तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा. टेक्नोलॉजी अभी इतनी है कि तुम गूगल से कुछ ही पूछो, सब कुछ पता चल जाता है. बट यू हैव टू जस्ट एड इन द वैल्यूज एंड अर्लियर द बेटर. करेक्ट. अर्लियर द बेटर, एज यू सेड, इनटू योर गर्भ अगर स्टार्ट करो, अर्लियर द बेटर. एक 2.5-3 साल के बाद, जैसे आप बोल रहे हो, बच्चा उस स्टेज में नहीं होता है कि आपको सुने. टीचर का सुनो, फ्रेंड्स का सुनो, ये प्रेशर लो, या पेरेंट्स का सुनो. करेक्ट. इजंट इट? तो एज दे grow towards the teenage, तब तो और भी उनका सुनने सुनाने का ये कम हो जाता है. So one thing what I liked आपका कि you should start it at the earliest. बाद में तो all the surroundings and everything is going to affect. The character is already made. अपने आप सब चीजें आपने पहले से ही डिसाइड कर ली हैं because of your आपके बिहेवियर पे, जो आपका प्रेगनेंसी पीरियड पे बिहेवियर था, उसी के ऊपर आपके बच्चे का, क्योंकि आपने देखा होगा हर बच्चा अलग बिहेवियर का होता है. हर इंटरेस्ट अलग होता है. व्हाई? बिकॉज जब प्रेगनेंसी में हम होते हैं तब उस टाइम पीरियड पे हमारे इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं. वी आर डिफरेंट करेक्टर इन एवरी प्रेगनेंसी. दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज डिफरेंट. हर बच्चा डिफरेंट होता है. अगर हम उसी को वही एनहांस कर दें, उस चीजों को, उन चीजों को, और समटाइम्स हमने देखा भी है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज उस पीरियड में करते हैं तो वो जो बच्चा है वो उस चीज को बहुत अच्छे से ले लेता है. सेम एज जैसे अपन ने पढ़ा, तो उस तरीके से भी हम देख सकते हैं. बराबर. और बच्चे जो छोटे होते हैं वो जल्दी कैच कर जाते हैं. बराबर. बच्चा इतना छोटा होता है, ही इज मोर पावरफुल देन एन एल्डर वन. हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स भी देखे होंगे. इवन वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ टेबल्स. बड़े होने के बाद आप जितना मर्जी टेबल्स लर्न कराने की कोशिश करोगे, बच्चे कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे. बट इनिशियल स्टेज में अगर आपने उसको कुछ स्किल्स भी सिखा दिए, एंड इवन यू हैव टीच द टेबल्स आल्सो, वो फटाफट बोलना शुरू कर देते. लेकिन अर्ली एज में आप जितना ज्यादा हो सके उनके ऊपर काम कर सकते हैं, रादर देन कि थिंकिंग कि हम अभी नहीं करते, 2.5 years के बाद करें. तो उसके बाद तो सब सेट हो जाएगा. उसके बाद द पेरेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स को अपनी ये स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए कि यू शुड ग्रो योर लिसनिंग स्किल्स. अपनी लिसनिंग स्किल्स को एनहांस कर लेना चाहिए. बच्चे क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली आपको वो सुनना चाहिए. यू शुड नेवर डिक्टेट हिम कि अब आपने ये नहीं करा, अब आपने कपड़े नहीं संभाले, अब आपने ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा.
he will learn automatically. जैसा वो आपको देख रहा है वैसा ही बराबर। automatically he'll do, he'll perform everything. You don't have to teach anything. कुछ भी उसको बताने की समझाने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे करके gradually he'll know everything. कितना टाइम पीरियड तक आप वेट कर सकते हो, आप वेट करो and just watch the children what he is doing, how he is going. And you should know कि हमें उसे आइंस्टाइन बनने देना चाहिए. करेक्ट. हम उनके आइंस्टाइन जो पावर्स होती है उसको हम रोक लेते हैं कि नो 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 नो, डोंट टच दिस, डोंट टच दैट. इवन द बच्चा आके अगर वो कुछ चीजों से खेल भी रहा होता है तो भी हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं इसको नहीं करना है. करेक्ट. तो इन सब चीजों को नहीं करना है, ये चीजें नहीं करनी है. आप बिखेरो मत, आप ये मत करो, आप लेट देम डू एनीथिंग दे वांट टू डू. अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि कुछ हार्म कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू चेक कि आपको उसको उस काम को करने के लिए कुछ और काम देना होगा. अगर सम नेगेटिव थिंग ही इज डूइंग, अगर वो कुछ नेगेटिव काम कर रहा है तो आप उसको हटा के कुछ पॉजिटिव काम के लिए उसको लगाइए, रादर देन टू डांट के, गुस्सा करके या कुछ और नेगेटिव बोल के उसको हटाने के बजाय आप पॉजिटिव चीजों में, बिकॉज ही नीड्स टाइम ऑफ योर्स. वो आपका समय चाहता है. इवन चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब बच्चे एक बराबर होते हैं. एंड नेवर थिंक कि आप बड़े होते जा रहे हो तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं. बट यू शुड रिमेन द चाइल्ड. मतलब कहते हैं ना, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको हमेशा जगा के रखना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज लर्निंग. द चाइल्ड इज ऑलवेज लर्निंग. हर बच्चे को आप देखोगे वो हर चीज सीखना चाहता है. ही इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे. सो यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग विद चिल्ड्रन. अब न्यू जनरेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बट लेकिन हम फिर भी हम बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हमको नहीं यूज करना है. हम धीरे धीरे करके कटते जाते हैं. बट आपको उनके साथ बढ़ के काम करना चाहिए. मैनी ऑफ द पेरेंट्स आई हैव सीन जो अभी मोबाइल के ऊपर लॉक लगा देते हैं. दे डोंट वांट कि हमारे बच्चे कुछ भी देखें, बट इट इज ओपन, सब कुछ ओपन है. तो इट्स बेटर टू डिस्कस विद देम. हर एक चीज आप डिस्कस करो. रादर अगर इस तरीके से नहीं डिस्कस कर सकते तो ऐसे करो कि व्हाट यू डू इन योर टीनेज. आप अपनी टीनेज में क्या करते थे, आपने क्या किया, व्हाट आर योर एग्जाम्पल्स. सो ये इस तरीके से आप बेटर वे में बच्चे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे. एंड रीड ऑल द जितनी भी स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं उनको आप कनेक्ट करो, उनको पढ़ो. तो उनको आपको पढ़ के पता लगेगा कि व्हाट आर द थिंग्स वर यूज्ड इन द अर्लियर स्टेजेस, जब प्रेगनेंसी होती थी या अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के साथ हम क्या क्या चीजें करते थे. करेक्ट. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हनुमान जी का. जब हनुमान जी पैदा हुए तो उनकी मदर ने क्या करा, बिकॉज उनका एक बहुत लंबा पाथ था. हनुमान जी आए इसी वजह से थे, राम जी की रक्षा करने के लिए एंड उनका सीता जी को वापस लाने के लिए. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई हिज मदर डिजाइन द बेबी लाइक दिस. इसी तरीके से उनका डिजाइन हुआ, हनुमान जी का डिजाइन हुआ. वो काफी दिन तक उसमें रही, गुफा में रही और उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्डिंग किया उनका. सो व्हाट मेड हिम डिफरेंट, इसी तरीके से वो डिफरेंट बने. सेम प्रोसीजर होता है कि अगर हम एंशिएंट चीजों को हम देखें समझें तो वी हैव पावर टू एजुकेट आवर पावरफुल चिल्ड्रन. तो हमारे जो पावरफुल बच्चे हैं उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज रेडी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. हर चीज वो एक्सप्लोर करना चाहता है. बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी हम बिजी होते हैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कि प्लीज चेक दिस, माय सोनोग्राफी, माय टैबलेट्स एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज फाइन. बट लेकिन हम बच्चे के साथ कनेक्ट ही नहीं होते हैं. हमें बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, पूरा डे शेड्यूल कनेक्ट करना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग इन आवर डे. पूरा डे में हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन भर में हम क्या कर रहे हैं. दैट वी शुड कनेक्ट विद द बेबी एट द अर्लियर पॉइंट ऑन. सुबह उठ के मॉर्निंग में आप मेडिटेशन कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मेडिटेशन, बिकॉज टू नो योर सेल्फ, सेल्फ टॉकिंग इज अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी. आप अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग कि आप क्या चाहते हैं. एंड द सेम इज द प्रोसीजर विद द चाइल्ड. बच्चे के साथ भी ऐसा ही है. ही हैज हिज ओन पाथ. The child never, you never chooses the child.
आप कभी भी किसी बच्चे को चूज नहीं करते हो कि हाँ ये वाला बच्चा हमारे पास आना चाहिए या ये लड़की आनी चाहिए या लड़का आना चाहिए. यू नेवर चूज. आप नहीं चूज कर सकते हैं, बट द बेबीज हैव द पावर्स टू चूज देयर पेरेंट्स बिकॉज दे हैव देयर ओन पाथ. उनका एक अलग पाथ होता है. वो देखते हैं कि कहाँ मैं जाऊंगा तो मेरी लाइफ जर्नी, जो मेरा लाइफ का मोटो है, वो यहाँ से पूरा हो. So we don't have to dictate them. उनको dictate नहीं करना है. They have to learn by their अपने experiences से वो learn करेंगे and जो उनका path है उसी के ऊपर जाए. So आपको उनको disturb नहीं करना चाहिए कि बेटा ये करो या ये करो. Let them listen to their subconscious mind. तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कनेक्शन देना चाहिए, जिससे कि यू कैन कनेक्ट विद एनीबॉडी, with your husband, with your children, anybody you can connect with. So you have to practice this. So जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, you have to write all the positive and negative points. Correct. We have a small course also with us, that is Vardhan 1100 days. It is a full curriculum about 9 months. 9 months का पूरा curriculum है उसके अंदर. उसके अंदर एक जर्नल भी है. You can buy the books also in from the Amazon also. And we have थोड़ा सा एक छोटा सा एक हम sessions भी लेते हैं उसके अंदर. Every Saturday we take sessions for that. तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. And you can learn कि what are the activities, कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि जिससे हम बेबी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो. करेक्ट. सो कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हो, आपको पता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये अब बहुत कॉमन हो गया है. करेक्ट. जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के राइट ब्रेन से कनेक्टेड है. करेक्ट. सो हमको कुछ एक एक्सरसाइजेस हम बताते हैं जिसमें आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करके अपने दोनों माइंड को कनेक्ट कर सकते हो एक के साथ एक. यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन एनहांस द क्वालिटीज ऑफ योर चिल्ड्रन. धीरे धीरे करके आप ऑटोमेटिकली उनको भी बता सकते हो कि यस, दीज आर द एक्टिविटीज व्हाट यू कैन डू. कुछ एक एक्सरसाइजेस हम बताते हैं, ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो. सम ऑफ द पजल्स हम बताते हैं दैट यू कैन प्ले. अच्छे से आप खेल सकते हो. एक बहुत ही अच्छा गेम है दैट आई वुड लव टू शेयर विद, क्योंकि ये एक जो गेम है वो मेरी डॉटर ने मुझे सिखाया था. एंड मैं ये गेम सबको शेयर करती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस एंड बिल्कुल फ्री गेम है एक तरीके से. यू हैव टू टेक वन टाइल. आपको टाइल लेना है एंड टाइल को ब्रेक करना है. करेक्ट. आप बाजार जाते हैं, बाजार जाके पजल्स खरीद के लेकर आते हैं. करेक्ट. और उन फिर पजल्स को बनाते हैं. एंड यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीअरेंज दीज द टाइल. आपको वापस से उसको रीअरेंज करना है. बाय डूइंग दिस यू आर कनेक्टिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड. आप इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हो. राइटिंग विद योर लेफ्ट हैंड, आप अपने दोनों माइंड्स को एक्टिव कर रहे हो. अगर आप राइट हैंड से भी लिखते हो और लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो, देन यू आर दोनों माइंड को आप एक साथ एक्टिव कर रहे हो. अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए मुझे कि कब ऐसा टाइम होता है जब आपके दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं. सबके ब्रेन एक्टिव होते हैं ये वाले, बट लेकिन कब होते हैं? एनी पर्टिकुलर टाइम? आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ये, बट फिर भी दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं. मे बी वो जो टाइम बोलते हैं midnight 3:30 or so. No, early morning. Early morning. So both brains are connected. एक मन आपका बोलता है कि चलो गेट अप, जल्दी जल्दी फटाफट से खड़े हो जाओ, काम पर जाना है, ये करना है, वो करना है. और दूसरा मन आपका क्या कहते हैं, थोड़ा देर और सो जाओ, अलार्म बंद करके हम वापस से सो जाते हैं. ये दोनों माइंड्स आपके कनेक्टेड होते हैं अर्ली मॉर्निंग. अब नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू. अगर आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, यू कैन कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड. आप उसको ट्रेन कर सकते हो. करेक्ट. अगर आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप देखोगे कि हमेशा ऐसा ही होता है कि एक मन हमारा ये करने का कहता है और दूसरा मन हमारा मना करता है. तो व्हाट इज दिस टू? एक कॉन्शियस माइंड जो हमें बताता है बार बार कि यस
अब टाइम हो गया उठने का, यू हैव टू गेट अप अर्ली, ये काम है, ये करना है, वो करना है, बट द अदर ब्रेन सेज कि नहीं अभी आप सो जाओ, यू हैव थोड़ा 5-10 मिनट और सो जाओ। करेक्ट? तो यही मॉर्निंग टाइम होता है जब हम ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन बी वेरी वेरी पॉजिटिव। सो आई वांट दिस होमवर्क टू बी डन बाय यू, और आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताया है। यू शुड राइट योर ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स एंड ऑल नेगेटिव पॉइंट्स, एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप नेगेटिव बातें लिख कर उसको फाड़ देते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो नेगेटिव बातें आपसे हट गई हैं, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर पॉजिटिव पॉइंट्स कि इसी को एनहांस करना है मुझे, एंड मेक अ ब्यूटीफुल पोस्टर। योर क्रिएटिविटी शुड ऑलवेज बी देयर। अपनी कुछ भी चीजों के अंदर आप क्रिएटिविटी ढूंढो, बिकॉज क्रिएटिविटी इज कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी जो क्रिएटिव पावर्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग तो आप किससे करते हो? कॉन्शियस माइंड से करते हो। करेक्ट? कॉन्शियस माइंड आपको सारी लॉजिकल थिंकिंग बता देता है, इस ये करूंगी तो ये है, नुकसान है, इसमें फायदा है, सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग बता देता है। बट सबकॉन्शियस माइंड आपको और अच्छे से अवेयर कराता है कि व्हाट आई हैव टू डू। और आप जो भी करते हैं, आप जैसे अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, उसके अंदर भी हम सोचते हैं कि हमें कोई राइट बात बता दे, हम चले जाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, एनी किसी और जनों के पास भी चले जाते हैं कि हमें आप कुछ राइट बात बता दो कि ये दिस विल हैपन इन आवर लाइफ एंड दिस विल हैपन इन आवर लाइफ, ये कैसे होगा, मैं एक अच्छा वो बन जाऊंगा क्या, या एनीथिंग हम जाते हैं। बट what is the right thing is, what is the truth behind this is, everything is inside you। सभी कुछ चीजें, सारे आंसर्स जो हैं वो आपके अंदर है। you have to listen to them। आपको अपनी हमेशा जो आपकी गट फीलिंग आती है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट, एंड द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय योर चिल्ड्रन। धीरे धीरे करके आपके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे, द पॉजिटिविटी दे विल फॉलो, एंड they will be successful in their lives। correct? So I may say you must add these good qualities अपने साथ में, एंड जो ये प्रैक्टिस करनी है वो हमको पार्टनर्स के साथ ही करनी है। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ ही करें ये, देन ओनली यू विल नो द पॉजिटिव पॉइंट्स। क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना, वो दे विल गिव द एनर्जीज टू द चाइल्ड। जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो जाती हैं, बट आपने कितना स्ट्रॉन्ग कर रखा है अपने बच्चों को? हैव यू गिवन द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टू देम सो दैट दे कैन नॉट गो टू द नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि आफ्टर 2.5 years वो तो बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे, बट लेकिन आपने उनको कैसा डिजाइन किया? व्हाट यू हैव गिवन? यू हैव गिवन द पॉजिटिव पॉइंट्स टू देम। अगर आपने उनको पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो पॉजिटिव पाथ पे ही जाएंगे, दे विल नेवर गो टू द नेगेटिव पाथ। करेक्ट? सो व्हाट यू हैव गिवन, आपको बार बार जाके चेक भी नहीं रखना होगा, बार बार जाके आपको मोबाइल पे लॉक भी नहीं लगाना होगा, बिकॉज दे नो एवरी व्हाट यू हैव गिवन। दैट इज द स्ट्रेंथ that you have given to your children। correct? So this is my this is the homework to you all। और इस बारे में अगर आप कुछ और क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं, then you can just ask me, और आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। so we will connect